Good morning, students. In this video clip, we will discuss about the worksheet number 8 about regular verbs, irregular verbs. Okay, it is also called strong verbs. Okay, let's read the given passage. Read the following statements of the servant recorded by the police. There are some statements you will read yourself. Okay, study the encircle world. Do you find any similarity in these verbs? And you can see there are some words which has been encircled, such as went, wore, told, stood, again or. Okay, all the encircled words, all the encircled verbs are past forms that do not end in ed. You can see all these verbs are past forms that do not end in ed. Okay, these are not ed ending words. Okay, and such type of verbs which do not end with ed, that are called irregular verbs. Okay, the verbs do not end, you can see here, the verbs do not end in ed in their past forms are called irregular verbs. Some irregular verbs and their forms has been written here: see, saw, and seen. Okay, go, went, gone. Okay, tell, told, stand, stood, wear, or. Okay, you can learn them. Okay, these are irregular verbs. Now we will study some more irregular verbs. The chart has been given here. You will make all this. It means you will make a table. You will write all these verbs in your copy, fair copy. Okay, in grammar copy, and learn these verbs. Now we will discuss about the worksheet number 9. Okay, given here are some pictures. Look at them and complete the sentences using appropriate verbs. It means there are some helping verbs which has been given in a help box, and with the help of them you will complete the sentences. Such as first one has been done already. She consulted the book to plan her holidays. Okay, यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज किया गया है? सेकंड फॉर्म कंसल्टेड. ओके, इन सेकंड शी फॉरगॉट अनूज फोन नंबर. शी फॉरगॉट, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म क्या है? फॉरगॉट. ओके, यहाँ फॉरगेट दिया हुआ है बॉक्स में, हम लोग इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे बिकॉज इट इज इररेगुलर वर्ब. ओके, क्योंकि ये ईडी से एंड नहीं होता है. ओके, on the page number 31 we will do some more exercises related to the same worksheet. She fell off the stairs and hurt his knee. In the help box you can see, fall is given. We will write the second form of the verb fall, and second form of the verb fell we will write there. Okay, and hurt, and second form of the hurt will be the same. Okay, so we will write there. She fell off the stairs and hurt her knee. वो सीढ़ियों से गिर पड़ी और अपनी घुटनों को, उसकी घुटनों में चोट लग गई. ओके, द कैट स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द स्लीप विल बी स्लेप्ट. उसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे. इन दिस वे वी विल कंप्लीट द होल एक्सरसाइज, वर्कशीट नंबर 9.
Now we will just go ahead on the worksheet number 10. Nikki had a bad day. Look at the picture. In this exercise also we will do the, it means the help box has been given here, and there are some verbs, helping verbs. We will complete the sentences with the given verbs. While cooking, she burned her head. You can see in this picture. खाना पकाते समय जो है वो उसने अपनी हाथ को जला लिया या उसका हाथ जल गया. ठीक है. वाइल मीन्स के दौरान, उस काम करने के दौरान. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज number 33. Another activity is going on here. In the picture you can see what is going on. While driving, there is someone who is driving the car. Okay. While driving, she met with an accident. जब वो गाड़ी चला रहा था उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई. मीट का सेकेंड फॉर्म मेट हम लोग यहाँ फिल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, सी फेल अस्लीप. फेल अस्लीप मीन्स सो गई. ठीक है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर सी इज स्लीपिंग, सो वी कैन राइट हियर सी फेल अस्लीप. ओके. इन दिस वे वी विल कंप्लीट these sentences. Now we will just go ahead on the worksheet number 11. A report has been given. Given below is a newspaper report about Cinderella's wedding with the prince. It has not been edited. Read the news and correct the errors. Errors means mistakes. गलतियों को आपको ढूंढना है इस पैसेज से. ठीक है. एक न्यूज़पेपर द लंदन टाइम्स है. इसका जो है ये पैसेज दिया गया है यहाँ से, उसमें से एक रिपोर्ट दी गई है. उस रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, गलतियाँ हैं. उसको आप फाइंड आउट करोगे और उसको आप यहाँ नीचे लिखोगे. ठीक है. करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड दोनों लिखोगे. We will read line by line. London 9th August. The prince and Cinderella not getted. Getted is wrong word. So we will write here getted and correct word is got. हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे. पास्ट फॉर्म में ही हमें लिखना है. ठीक है. क्योंकि वही इरेगुलर वर्ब्स हैं. पास्ट फॉर्म में लिखेंगे तभी तो इरेगुलर वर्ब बनेंगी. तो वी विल राइट हियर गॉट मैरिड. उनकी शादी हुई इन द रॉयल चर्च विथ द ब्लेस नहीं, ब्लेस यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग वर्ड में लिखेंगे. यहाँ पर लेफ्ट साइड एरर्स मीन्स मिस्टेक्स, और यहाँ पर करेक्ट वर्ड में क्या लिखेंगे, ब्लेसिंग ऑफ द किंग. प्रिंसेस सिंड्रेला वियर्ड नहीं होगा यहाँ पर. इन प्लेस ऑफ वियर्ड वी विल पुट हियर और. हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वियर्ड ये मिस्टेक है, मिस्टेक में लिखेंगे, एरर्स में लिखेंगे, और करेक्ट वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और. ठीक है. अ पिंक ड्रेस एंड होल्डेड नहीं होगा यहाँ पर, हेल्ड. हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, होल्डेड को यहाँ पर एरर में लिखेंगे और इसको हेल्ड यहाँ पर करेक्ट वर्ड में लिखेंगे. ओके. होल्ड अ बुकेट मीन्स फूलों का एक गुच्छा होता है जिसे बुके कहते हैं. ठीक है. इसको बुकेट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे बुके. ऑफ रेड रोजेस इन हर हैंड, हर जेवल्स शाइंड लाइक स्टार्स. हर जेवल्स वर शाइनिंग. यहाँ पर शाइंड नहीं, या तो शोन लिख सकते हैं या वर शाइनिंग लाइक स्टार्स. ठीक है. इस तरह से इसको दिखाएंगे. द प्रिंस, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पर शोन लिखेंगे. हर जेवल्स शोन लाइक स्टार्स. तो यहाँ पर साइंड यहाँ लिखेंगे एरर्स में, और यहाँ लिखेंगे शोन. ओके. शोन लाइक स्टार. द प्रिंस टू लुक्ड स्टनिंग. यहाँ पर LOOKT लिखा गया है, यहाँ पर लुक्ड होगा, ED लगाएंगे. टू लुक्ड क्योंकि सेकेंड फॉर्म होता है और यही रेगुलर वर्ब है. ओके. लुक्ड. स्टनिंग मीन्स अलग दिखना. ठीक है. चौकन्ने दिखना. ठीक है. या ग्लोरियस वे में दिखाई पड़ना. ठीक है. दे टुक, टेक्ड नहीं होगा यहाँ पर. इन प्लेस ऑफ टेक्ड वी विल राइट हियर टुक. दे टुक द वेडिंग वोव्स मीन्स यहाँ वचन से, प्रतिज्ञा से, मतलब उन्होंने जो शादी के समय कुछ वचन लिए जाते हैं उसको उन्होंने लिया, या ओथ लिया, प्रतिज्ञा की, शपथ लिया.
एंड पुटेड नहीं होगा, यहाँ पर पुट होगा। पुट का तीनों फॉर्म एक ही होता है। पुट रिंग्स ऑन ईच अदर्स फिंगर्स, द प्रीस्ट यहाँ पर लिखा हुआ ब्लेसेस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड। फास्ट फॉर्म में इसका लिखेंगे ब्लेस्ड द रॉयल कपल आफ्टर द वेडिंग, द किंग थ्रोड अ लेविस पार्टी। लेविस मीन्स खर्चीला, शानदार, ठीक है। तो थ्रोड यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसमें लिखेंगे एरर्स में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्रो द लेविस पार्टी, ठीक है। In this way, worksheet number 11 has been completed. Now we will proceed. Worksheet number 12. The pictures given below. What Nikki did yesterday. Nikki ने कल क्या किया था? Taking clues from the box. Box से हमें जो कुछ words लिए गए हैं उसकी सहायता से हम लोग sentence complete करेंगे. With the given words, phrases, we will complete the sentence. You can see in this picture. Okay. निकी वोक अप एट 7:15। निकी कब उठी, 7:15 पर उठी। सी हैड हर ब्रेकफास्ट एट 7:30। उसने अपना नाश्ता कब लिया, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोला जाता है। सो सी हैड, यहाँ पर हैड वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सी हैड हर ब्रेकफास्ट एट, हैड मतलब किया, हेल्पिंग वर्ब के नहीं फॉर्म में नहीं है यहाँ पर। हैड मतलब किया, उसने नाश्ता लिया, ठीक है, 7:30 पर। देन सी वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म we will use here, second form of the verb. She went to school, क्योंकि हम जो है past tense में सारे sentence को लिख रहे हैं। We are writing all the sentences in past tense. Okay, so we will write the past form of the verb. Okay, she went to school at 8 a.m. 8 बजे वो स्कूल चली गई या चली गई थी। She had her lunch at 8 she had her lunch at 1:15, और कोई और टाइम आप दोपहर का दे सकते हैं, ठीक है। कि उसने 1:08 पर, 1:10 पर उसने 1:15 पर उसने अपना लंच कर लिया था। इन दिस वे वी विल कंप्लीट द वर्कशीट नंबर 12। ओके, इन द सेम वे वी विल कंप्लीट रिमेनिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स। ओके, आप पिक्चर्स को देख के उसको कंप्लीट करेंगे और पास्ट टेंस में ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्टिविटी उसने किया था निकी ने, वो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ किस में है, पास्ट टेंस में हुई थी, ठीक है। इसको आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हुए ही बनाएंगे, सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट नंबर 13। सिंड्रेला's stepsisters wore the new dresses at the party. Cinderella did not wear a new dresses at the party. सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थीं, मैंने स्टेप सिस्टर्स में बताया था आपको, सौतेली बहनें थीं, उन्होंने न्यू ड्रेस पहन रखे थे, जबकि सिंड्रेला ने जो है न्यू ड्रेसेस नहीं पहन रखे थे। तो यहाँ पर कुछ काम सिंड्रेला की बहनों ने किया था और कुछ सिंड्रेला ने नहीं किया था। तो आप, इट मीन्स वी विल राइट द सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। वी विल यूज द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे एक्टिविटी, और एक निगेटिव में। सिंड्रेलास स्टेप सिस्टर्स वेंट टू द किंग्स पार्टी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें कहाँ गई थी, किंग पार्टी में गई थी, राजा की पार्टी में गई थी। सिंड्रेला डिड नॉट गो टू द पार्टी, वो सिंड्रेला वहाँ पर नहीं गई थी। आप आई होप आपको पता होगा कि डिड नॉट जब हम यूज़ करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब while using did not while making the negative sentence in past tense। past indefinite में जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, इन दिस वे वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। इस तरह से सारे एग्जांपल जो दिए गए हैं, एक जो है सिंड्रेला सिस्टर्स एट डिलीशियस फूड, उन्होंने स्वादिष्ट भोजन किए थे, बट सिंड्रेला डिड नॉट ईट द डिलीशियस फूड। इस ध्यान रखिएगा इसको कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। इन दिस वे द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस यू विल डू योरसेल्फ। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। Now we will discuss worksheet number 14. There is a picture has been given. Okay,
then lots of activities going on in the room. It means some objects आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, बहुत चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स you will complete the given sentences in negative form. Okay, you will have to form negative sentence. आपको past indefinite का negative sentence यहाँ पर form करना है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। he did not close the door, he did not close the door, he did not switch off the fan. अब कोई चोर आया हुआ था, देयर वॉज अ थीफ who has stolen some necklace and other ornaments. Okay, and he scattered all these things. उसने सारी चीज़ों को फैला दिया है उसने, और नेकलेस चुरा के ले गया है। तो क्या क्या चीज़ें उसने किया है और क्या क्या चीज़ें नहीं किया है उसको हम अब लिखेंगे। जो जो उसने नहीं किया है उसको नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे एज वी हैव डन इन प्रीवियस एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 13। तो उसी तरह से नेगेटिव फॉर्म में इसको बनाना है आपको। ही डिड नॉट स्विच ऑफ द फैन, ही डिड नॉट पैक द सूटकेस, उसने सूटकेस को पैक नहीं किया, उसने बिजली जो है फैन को स्विच ऑफ नहीं किया। इस तरह से आप उसको नेगेटिव, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, पिक्चर में दिखाई पड़ रहा हो, उसको सारा आप करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल proceed on worksheet number 15. You will have to write the verbs which has been given in the box, in the help box. You will select them, and I hope you will know you all are aware about the regular verbs and irregular verbs. Regular verbs ends with ed, d and t. It means ed and t and d एंडिंग वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो कि ईडी, टी और डी से जो है एंड होते हैं उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे लुक का लुक्ड, कैरी का कैरीड, प्रे का प्रेड, ये सब क्या हैं? दीज आर रेगुलर वर्ब्स। एंड तो इसमें से आपको जो है चूज़ करके यहाँ पर रेगुलर वर्ब्स इस साइड में और इर्रेगुलर वर्ब्स आपको इस साइड में राइट हैंड साइड में लिखना है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स कभी भी ईडी, डी या टी से जो है एंडिंग नहीं होता है इनका। ये इनका पास्ट फॉर्म सेपरेट, इट मीन्स अलग होता है, ठीक है। देयर पास्ट फॉर्म्स आर डिफरेंट टू फर्स्ट फॉर्म। ईट, एट, ब्लो, ब्लू, टेक, टुक, फॉरगेट, फॉरगॉट, बाई, बॉट। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इन द सेम वे यू विल कंप्लीट दिस chart, okay, and you will learn it, okay, you will learn it, and you will write all these verbs in your copy also, regular verbs and irregular verbs. You will write all these verbs and these two tables in your copy also, okay, and learn it. These are very important. Now we will discuss exercise number 16. There is an activity. There is an activity was going on. Activity was going on. It means एक चोर जो है वो चोरी करके जाता है, पैलेस में चोरी होती है। there is a theft in the palace, okay, and thief has stolen lots of things such as necklace and money and some other things, ठीक है। तो पुलिस इसमें इंट्रोगेट करती है, ठीक है, क्वेरी करती है, उस चोर से कुछ पूछती है क्वेश्चन, and there are some sentences have been given, and you will, but the sentences have not edited properly or not written properly in proper order. You will have to write these sentences according to subject, verb, agreement, and according to it means in order. You have to write all these sentences in order. तो प्रॉपर वे में आपको इसको जो है करके लिखना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वाई यू स्टील नेकलेस, प्रॉपर वे में इसको करेंगे, ऑर्डर में जब बनाएंगे सारे सेंटेंस वर्ड्स को। वाई डिड यू स्टील द नेकलेस, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्टील फॉर मनी, आई स्टोल इट फॉर मनी। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 17.
वर्कशीट नंबर 17 में भी हमें रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स इस पैसेज से हमें चूज करके लिखने हैं, ठीक है, एज वी हैव डन अर्लियर. आई होप you can do it. Now we will discuss about the worksheet which has been given on the page number 42. इसमें जो पैसेज दिए गए हैं, दोनों पैसेज आपको एडिट करने हैं. वेयर देयर इज एनी प्रॉब्लम ऑफ वर्ब, ओके, इट मीन्स वेदर इट इज रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर चूज करके लिखेंगे कहाँ पर गड़बड़ है. जैसे मैं एक दो सेंटेंस आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ. वाइल अ गोट गोट हर्ट्समैन, गोट हर्ट्स मीन्स होता है, मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप लिखेंगे गोदर्ड. गोट हर्ट मीन्स होता है गडेरिया, जो कि पशुओं को चराता है, बकरियों को लेकर चराने के लिए जाता है. वाइल गोट हर्ड वॉज टेंडिंग हिज गोट इन अ पास्चर. पास्चर मीन्स जो चारागाह, जो चरने का स्थान होता है उसे हम पास्चर बोलते हैं इंग्लिश में. ही सा, सी नहीं, इसको सब पास्ट फॉर्म में लिखना है हमें, इरेगुलर वर्ब्स हमको यूज करने हैं. ही सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया गया है. ही सा अ नंबर ऑफ वाइल्ड गोट्स, यहाँ पर लिखेंगे सा, ओके, क्योंकि मिस्टेक है यहाँ पर, सी नहीं होना चाहिए, पास्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, सा होना चाहिए. मिंगल विथ हिज फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स पशुओं का झुंड जो होता है, बकरियों का झुंड होता है. ये ड्राइव, ड्राइव नहीं होगा यहाँ पर, ड्रोव, DROV, ड्रोव ऑल द गोट्स होम, एंड पुट इट नहीं होता है, पुट होता है. तो इस तरह से अब जैसे लिखा है द नेक्स्ट डे इज स्टॉर्मी, द नेक्स्ट डे वाज स्टॉर्मी, क्योंकि स्टोरी बताई जा रही है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. तो इस तरह से सारे वर्ब्स की जो है पास्ट वर्ब फॉर्म यहाँ पर आप लिखेंगे, और इस तरह से नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया गया है उसको भी कंप्लीट करेंगे. ओके, आई होप यू कैन डू इट. इट इज़ वेरी इजी. ओके, इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस लेटर. ओके, थैंक यू very much. Have a nice day.